So next topic is pressure volume loop. In the pulmonary function test, we have discussed the flow volume loop in the last video. Now the next topic is the pressure volume loop. Okay, so what actually the pressure volume loop indicate or what it actually means. So in the we have volume and in the x-axis we have pressure. Okay, and this pressure is actually the intrapleural pressure. Okay, we know that the lungs we have alveoli, in alveoli we have surfactant. So lung is due to the alveoli presence of surfactant, it actually reduces the surface tension and it contracts the lungs in normal situation, and our chest wall it expands. ठीक है, तो in between these two, chest wall and the lungs, we have a pressure which is called the intrapleural pressure. And this we know that when the two things pulls apart themselves, like one is going to the other direction, the other is going to the other direction, in between them there is a negative pressure is created. So intrapleural pressure is negative, so this is showing the negative intrapleural pressure, -2, 4, -6, and that in the right side we have increasing the intrapleural pressure. On the y-axis we have volume of air we expire, volume of air we inspire. So delta V, or change in the volume about change in the pressure, is actually the compliance. How much we need pressure to change a certain volume. ठीक है, हम कितना pressure exert करें to actually inspire that volume or to expire that volume. ठीक है, that is compliance, and it is represented, or maybe it is represented by tan theta. So this theta, okay, this theta is actually showing the compliance, and you can see that inhalation में हमारे पास theta is small because inhalation में compliance हमारे पास कम होती है lungs में, and in exhalation we have more compliant lung. ठीक है, so the term compliance को थोड़ा हम कर लेते हैं. What is compliance? Lung compliance or pulmonary compliance is a measure of the lungs ability to stretch, to expand. ठीक है ना, और हमें पता है कि लंग्स में हमारे पास क्या है, इलास्टिक टिश्यू है विच कॉजेज इट्स रिकॉयल, उसकी रिकॉयल बैक करवाता है. सो उस इलास्टिक टिश्यू को हम कितना डिस्टेंसिबल कर सकते हैं, कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना उसे एक्सपेंड कर सकते हैं टू फिल वॉल्यूम ऑफ गैसेस. ठीक है, दिस इज द लंग कंप्लायंस. So stiffness and more elastic tissue, it actually these two things decreases the compliance. जैसे कि ये मग है, ये स्टिफ है, ठीक है, इसमें हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कुछ ना कुछ भर सकते हैं. बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट फिल दैट, इट्स नॉट कंप्लाइंट, ये स्ट्रेच नहीं होगी खुद से ताकि उस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम चीज़ें भर सकें. इट इज़ स्टिफ. ठीक है, तो स्टिफ चीज़ों की कंप्लाइंट कम होती है. जैसे कि, और ये राइट साइड पे बलून है, दिस इज़ ऑल्सो लेस कंप्लाइंट बिकॉज इट्स मोर इलास्टिक. इसको हम अगर इसमें हम गैस भरते हैं तो अगर हम इसे नहीं कवर कर सकते करते ऊपर से, तो क्या होगा कि गैस फिर से बाहर आ जाती है बिकॉज इट्स मोर इलास्टिक. एंड ऑन द अदर हैंड, like our lungs which are not that compliant, which are not that elastic between them, so उसमें हम अगर हम एग्जांपल दैट इज लाइक अ प्लास्टिक बैग, इसको हम जो ना ज़्यादा इलास्टिक है ना स्टिफ है, उसको ये एक कंप्लाइंट है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गैस भर सकते हैं. ठीक है, या फिर चीज़ें डाल सकते हैं. तो जैसे कि हमने कहा कि ऑन इन्हेलेशन, इंस्पिरेशन में या इन्हेलेशन में हमारे पास कंप्लाइंट कम है और एक्सलेशन में कंप्लाइंट ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑन इन्हेलेशन अगर हम इन्हेल कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे जो एल्वुलाई होते हैं उनमें हम गैस भर रहे हैं. ठीक है, तो वो डिस्टेंसिबल हो जाते हैं, वो एक्सपेंड हो जाती हैं. तो हमारे जो एल्वुलाई के अंदर वी नो दैट टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं. टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रेट द सर्फेक्टेंट, एंड दिस सर्फेक्टेंट एक्चुअली वर्क्स फॉर द सर्फेस टेंशन. ये सर्फेस टेंशन को डिक्रीज़ करती है. सर्फेक्टेंट डिक्रीजेज द सर्फेस टेंशन. तो हमारे पास जब ये वॉल्यूम भर जाता है ना, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाते हैं इन एल्वुलाई के, तो इसमें जो सर्फेक्टेंट होता है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है. हाउ? बिकॉज वो दूर दूर चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनकी सर्फेक्टेंट की सर्फेस वॉल्यूम कम हो जाती है. इसकी वजह से
ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट व्हेन सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन, व्हेन सरफेस टेंशन डिक्रीजेज इट इंक्रीजेज द कंप्लायंस। जब हमारे पास सर्फेक्टेंट कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगी और कंप्लायंस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह एक्सपायरेशन में अब हमारे पास क्या है, हम गैस एक्सपायर कर चुके हैं, तो नाउ द एल्विलाई आर इन, छोटे छोटे एल्विलाई हो गए हैं, ठीक है, स्मॉल हैं। अब उनमें हमारे पास जो वही सर्फेक्टेंट है, नाउ दिट इज कंसनट्रेटेड सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगी दैट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन मोर एंड मोर एंड इंक्रीजेज द कंप्लायंस मोर, ठीक हो गया। ना कंप्लायंस इज एक्चुअली, कंप्लायंस अगर हम देखें तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, और दोनों के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जैसे कि इलास्टिसिटी हमने कहा बहुत ज़्यादा होगी तो कंप्लायंस कम होगी, सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होगी तो फिर कंप्लायंस कम होगी, ठीक है। टू फैक्टर डिटरमाइन द लंग कंप्लायंस, इलास्टिसिटी ऑफ द लंग टिश्यू एंड सरफेस टेंशन एट एयर। और सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज एक्चुअली द इंटरफेस बिटवीन द, इंटरफेस है ये बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो हमारी लंग के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट और एयर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरफेस होगी एंड दैट क्रिएट्स सरफेस टेंशन। नाउ वी नो दैट कंप्लायंस जो है हमारी दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन एंड इलास्टिक फोर्सेज और इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी है दैट इज जनरेटेड बाय सम इलास्टिक फोर्सेज, ठीक है। और इलास्टिक फोर्सेज हमारी दो हैं लंग में, एक सरफेस टेंशन की वजह से जो इलास्टिक फोर्सेस जनरेट हो रही हैं दैट इज़ 2/3 कंट्रीब्यूशन उसकी है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और कुछ हमारी जो इलास्टिक फोर्सेस हैं दैट आर जनरेटेड बाय द इलास्टिक टिश्यूज़ लाइक इलास्टिन, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कंप्लाइंस डिक्रीजेज एंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कंप्लाइंस इंक्रीजेज। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, सिंपल। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस है और अदर फाइब्रोटिक टिश्यूज़ हैं, तो उनकी वजह से कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स या फिर जितने भी हमारी फाइब्रोटिक या फाइबर्स हैं वो इंक्रीज जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, लंग को एक तो इलास्टिसिटी को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं एंड वी नो दैट व्हेन इलास्टिसिटी इंक्रीजेज इट डिक्रीजेज द कंप्लायंस, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। दूसरी बात, फाइब्रोटिक टिश्यूज़ एक्चुअली स्टिफेंस द लंग एंड व्हेन स्टिफनेस इंक्रीजेज द कंप्लायंस ऑल्सो डिक्रीजेज। और इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा यू कैन सी दैट एग्जाम्पल में हमारे पास लास्ट लाइन में पल्मोनरी एडिमा भी है। तो पल्मोनरी एडिमा क्या करता है एक्चुअली, जो हमारे पास जो फ्लूइड है, एडिमस एडिमेटिस फ्लूइड है, एक मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करता है अल्विलाई के ऊपर एंड वी नो दैट व्हेन सरफेस इन एरिया डिक्रीजेज इट इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन। तो एल्विलाई के अंदर जो सर्फेक्टेंट की कंसनट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी और वो क्या करेगी, सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ करेगी एंड व्हेन सरफेस टेंशन इंक्रीजेज द कंप्लायंस डिक्रीजेज, ओके। ऑन द अदर हैंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में कंप्लायंस इंक्रीजेज, ठीक है, और एंड ऑल्सो इंक्रीजेज विद एज। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या होता है, लाइक एम्फेजीमा है, इनमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होती है इलास्टिक टिश्यूज़ की, तो इलास्टिसिटी डिक्रीजेज, सो कंप्लायंस इंक्रीजेज। ऑन द अदर हैंड एज्ड पर्सन में, ओल्ड पर्सन में भी इलास्टिक टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है, एंड दिस कॉजेज लेस इलास्टिसिटी एंड मोर कंप्लायंट। So in the restrictive lung diseases, decrease in the compliance because of stiffness or fibrosis, or maybe a mechanical stress like pulmonary edema. In the obstructive lung diseases, compliance increases because of decreased elasticity or increase its destruction. ठीक, now in the we know that तो हम इसे graphic form में कैसे देखेंगे, in obstructive lung disease how the compliance is reduced, how the we know that theta, when theta increases it means more compliant, theta decreases less compliant. अब इस ग्राफ में देखें कि हमारे पास the graph is blue one is normal, the red one is the restrictive lung diseases, ठीक है। इन restrictive lung diseases, restrictive right, जैसे कि हमने flow volume loop में पढ़ा था, सॉरी दिस इज़ दी फ्लो वॉल्यूम लूप, दिस इज़ दी वॉल्यूम प्रेशर लूप। तो फ्लो वॉल्यूम लूप में भी क्या हो रहा था कि राइट टूवर्ड्स द लाइट द लूप वॉज, लूप जो हमारी है वो टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो रही थी इन द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज, जिससे हमने आर से रिमाइंड उसको रिटेन किया था, ठीक है। तो इसी तरह रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज कंप्लायंस डिक्रीजेज इन द वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम लूप, उसमें भी राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है इसकी, एंड व्हेन
राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो थीटा ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, एंड थीटा डिक्रीजेस, कंप्लायंस डिक्रीजेस. On the other hand, in the COPD, asthma, emphysema, which are obstructive lung diseases, the loop shifted towards the left, and when it shift towards the left, the theta obviously increases and the compliance increases. Because हमें पता है कि COPD है या फिर कोई भी obstructive lung disease है, उसमें compliance का मसला नहीं है. Either उसमें in one type of emphysema there is destruction of elastic tissues, तो उसमें वैसे ही हमारे पास elasticity decrease होगी तो compliance increase होगी. On the other hand, we know that in the obstructive lung diseases the problem is एक्सपेलिंग द एयर आउट, नॉट फिलिंग. ठीक है, तो फिलिंग में मसला नहीं है तो कंप्लाइंस में कोई मसला नहीं है. कंप्लाइंस इन हम बल्कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है. ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, और मे बी डिक्रीज इलास्टिसिटी. So in summary, this loop shifted towards the right in the restrictive lung diseases, and it shift towards the left in the obstructive lung diseases. And shifting towards the left increases the theta, means more compliant, and it shifted towards the right means theta is decreasing, and thus compliance decreases.